Morning students. In a previous video we have to finish the organization of special need students like a special Olympic Bharat or Deep Olympic, Paralympic. Okay, for a Divyang students. Now we have to start next topic, inclusion and implementation in India. First of all, we have to talk about the इंक्लूसिव एजुकेशन. इंक्लूजन के बारे में तो जब बात करेंगे पहले ये समझ लें इंक्लूसिव एजुकेशन होती क्या है. इंक्लूसिव एजुकेशन लाइक अ इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन. ओके, और इंक्लूसिव एजुकेशन राइट मीनिंग इज entrapped to another. entrapped to it means एक दूसरे का समावेश होना, entrapped होना. ओके, it means जैसे कि if you are teaching to physical education with the help of education. ओके, अगर आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हो तो एजुकेशन के थ्रू पढ़ रहे हो. क्यों? क्योंकि ओके, अगर आपको बास्केटबॉल खेलना है, इफ़ यू प्ले अ बास्केटबॉल देन यू वोकेबरी इज़ मस्ट फॉर योर टीम. तुम्हें कुछ बोलना होगा टीम से तो कुछ ना कुछ बोलोगे. जैसे बास्केटबॉल लेके आओ, यू रीड इन अ एकेडमिक एजुकेशन बॉल, बी फॉर बॉल. ओके, जस्ट लाइक अ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर अ special need students. If normal students teach in a school, then this is very necessary. Special need or handicapped student also teach with these students. normal student के साथ बैठ के पढ़ें, समझें और अपने आप को डिमोरलाइज नहीं होने देंगे उससे. उसके लिए हमें आवश्यकता है. इट मीन्स आवर गवर्नमेंट को should be immediate step for this type of students or children. Okay, in this video our topic is concept of physical education, concept of inclusion and its need and implementation. Okay, that's why our concept of inclusion is this: a normal student or special need students teach to each other, read to each other. Okay, एक साथ पढ़ें. main motive is this. Okay, now our concept is clear. After that we talk about the needs and implementation. Okay, इनकी needs के लिए क्या ज़रूरतें होती हैं उसमें we will talk about the these type of students. First of all, we improve the self-esteem. If they sit to each other under the one roof, then they have self-confidence itself with the normal students and talk to each other. And after then, second point is better self-esteem improve or better thinking improve. Obviously they sit each other and they not having any idea having I am a disabled and I am not do this. अगर ये एक साथ बैठेंगे तो अपने आप की सोच भी उसी तरीके की रखेंगे. and they improve innovative and their thinking innovative they have. Okay, and they also sit to each other. एक साथ बैठेंगे ये एक दूसरे के साथ. they also develop the social qualities. And after then next point is academic achievement. If they read to with the normal students, they also
achieve to high marks in academic. आप लोगों ने देखा होगा कभी ऐसे बच्चे पढ़ते हैं नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बिकॉज वी नॉट जज हम किसी भी तरीके जज नहीं कर सकते हैं। अगर उसका पैर ख़राब है तो दे नॉट हैविंग अ गुड माइंड। ओके, अच्छा उनका दिमाग नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते। हाँ, अधिकतर ऐसा होता है, वो अच्छा अचीवमेंट करते हैं एकेडमिक। ओके, और उनकी सेंसिटिविटी भी बेटर होती है और सेंस थिंकिंग पावर भी अच्छी होती है कि क्या हमें सोचना है, मतलब क्रिएटिव थिंकिंग। दे ऑल्सो हैव अ क्रिएटिव थिंकिंग। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द नीड्स और इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया। क्या हमें इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए? फर्स्ट इज़ एक साथ एजुकेशन देनी चाहिए। एजुकेशन normal student and handicapped students like a paralyzed students also sit to each other under one roof, one class. Our government should take a immediate action with these type of students. We find out their needs also. हमें इनकी ज़रूरतों के बारे में पता करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमको प्लान करना चाहिए। Because next point is right to education. Right to education means all students have a right for getting a education. सबको हक है एजुकेशन प्राप्त करने का इन अ हेल्दी वे। हेल्दी वे मीन्स हमें अलग स्कूल में इनको नहीं डालना है, एक ही साथ पढ़ाना है। कभी कभी क्या होता है अलग स्कूल में होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए इनको बेटर एजुकेशन मिले, गवर्नमेंट को हम प्रोवाइड करने चाहिए, स्कूल काउंसलर प्रोवाइड करने चाहिए जो स्कूल को भी काउंसल करें कि आप इन बच्चों को बैठा लिए, पढ़ाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए लाइक अ नॉर्मल स्टूडेंट्स। एंड आफ्टर दैट काउंसलर शुड बी देयर फॉर दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट। हर स्कूल में काउंसलर भी होने चाहिए। ओके, जस्ट लाइक इन दिस पिक्चर। मेन थिंग इज दैट नीड ऑफ इंक्लूजन एजुकेशन। All students talk to each other, sit to each other and share our views also in this picture. And suitable environment होना चाहिए according to this type of student. Examination environment is suitable for this. अगर आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं तो इनके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन होनी चाहिए कि कोई किसी नेक्स्ट वन स्कूल हैविंग अ मोर फ्लोर देन they have to sit in a first floor also. स्कूल को ये प्लान करना चाहिए। एंड लास्ट थिंग इज़ कैरिकुलम अकॉर्डिंग टू दीज स्टूडेंट्स। स्कूल को इनके अकॉर्डिंग ही कैरिकुलम बनाना चाहिए, इनको साथ लेके चलना चाहिए। ओके, दिस इज़ द स्पेशल नीड। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओके स्टूडेंट्स।